ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All right, thank you everybody, thank you for joining. Sorry कल मिस हो गया, very very sorry for that. All right, I was stuck, कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था। 5th चैप्टर कर रहे हैं, 10th श्लोक है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि ब्रह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। पद्मपत्रं ऑल राइट, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और परपट? कोई वॉलंटियर करेगा? Prabhuji, I can read. हाँ माता, आप पढ़िए प्लीज। Translation: One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. Would someone like to read purport? माता जी आप ही कंटिन्यू करो। Okay, purport. Here, Brahmani means in Krishna consciousness. The material world is a sum total manifestation of the three modes of material nature, technically called the Pradhan. The Vedic hymns Sarvam hi etad Brahma, Mandukya Upanishad 2, Tasmad etad Brahma Nam Rupam Annam Cha Jayate, Mundaka Upanishad 1.1.9, and in the Bhagavad Gita 14.3, Mam Yonir Mahad Brahma, indicate that everything in the material world is a manifestation of Brahman. And although the effects are differently manifested, they are non-different from the cause. In the Ishopanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Krishna, and thus everything belongs to him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. Even one's material body, being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action, can be engaged in Krishna consciousness. It is then beyond contamination by sinful reactions. Exactly as the lotus leaf, though remaining in the water, is not wet. The Lord also says in the Gita 3.30, Mai sarvani karmani sanyasya, resign all works unto me, Krishna. The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of the material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to the knowledge that the body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे 5th चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं, कृष्णा अर्जुन के सवालों का जवाब देना। हम देख रहे हैं पहले चैप्टर भगवत गीता के, वहीं से अर्जुन के सवाल शुरू हो गए थे। सवाल पूछना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। तो अर्जुन ने कई अच्छे क्वेश्चन पूछे। मेनली उसको ये पता करना था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना। त्याग की भावना आ रही थी उसके अंदर। कभी कभी टफ सिचुएशंस में ना त्याग की भावना आ जाती है, वैराग्य की भावना आ जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना है शमशान वैराग्य, किसी ने सुना है शब्द शमशान वैराग्य? क्या होता है? किसी ने भी नहीं सुना?
या सबने सुना हुआ है इसलिए आप लोगों को लग रहा है अरे पता ही है यार क्या बोलना। प्रभु जी सुना हुआ है। सुना है, ओके। नताशा माता जी ने सुना, और किसी ने? नहीं सुना हुआ। नहीं, ओके। शमशान वैराग्य, शमशान पता है क्या होता है आप लोगों को? शमशान किसको पता है यस। क्या होता है? कौन बताएगा शमशान का मतलब क्या है? ओके, यस। क्रेमेटोरियम, सेमेट्री लिखे ना यहाँ, जहाँ पे अ, जलाया जाता है शरीर को, बॉडीज को, डेड बॉडीज को। तो चाहे जलाओ या दफनाओ जो भी, जब ऐसा एक सिचुएशन आती है जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर छोड़ देते हैं, तो जो उनके बहुत क्लोज होते हैं सगी संबंधी, वो आ, काफी ज्यादा एकदम शॉक की स्टेज में चले जाते हैं। कभी कभार इतनी शॉक की स्टेज में चले जाते हैं कि वो समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। और उसमें कई बारी कुछ व्यक्तियों को, कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों को ये आइडिया होने लग जाता है कि देखो वैसे अंत में तो देखो कुछ कुछ फायदा है नहीं वैसे, जितनी मैं उल्टी सीधी हरकतें कर लूं, जितनी मैं अपने ये इकट्ठे कर लूं चीजें, इन सब से इतना फायदा होगा नहीं, मतलब अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। देखो कितना सब इंसान लास्ट स्टेज पे भी ये सोचता है कि कैसे मैं पैसे थोड़े से और बचा लूं, है कि नहीं, या मैं थोड़ी सी और सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लूं, इंद्रिय तृप्ति कर लूं, ऐसे चलती रहती है दिमाग की बात, कहानी। लेकिन अपने साथ थोड़ा कुछ लेके नहीं जाता व्यक्ति। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको ये थोड़ा आइडिया हो जाता है, वो जब ऐसे प्रोसीडिंग्स में होते हैं, जैसे शमशान में जब डेड बॉडी को जब तक वो कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं, तब तक तो रोएंगे, उनके अंदर बड़ी डिटैचमेंट आ जाएगी मटेरियल वर्ल्ड से। और वो सोचते हैं कि अब हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पूरी लाइफ चेंज कर देंगे और त्याग देंगे सब चीज, सीरियस हो जाएंगे। जो जो असली चीज है उसके लिए सीरियस हो जाएंगे, नकली चीजों में नहीं रहेंगे। तो उनके अंदर डिटैचमेंट आती है मटेरियल वर्ल्ड से। लेकिन वो डिटैचमेंट क्या होती है, वो थोड़े टाइम ही रहती है, उतने टाइम ही रहती है जब तक वो वहां पे होते हैं, शमशान में होते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो घर आते हैं, फिर उनकी रूटीन वही वैसे की वैसे शुरू हो जाती है, विद इन अ शॉर्ट टाइम। वही टीवी देखेंगे, इधर उधर करेंगे, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन शुरू हो जाती है जो पहले थी। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका वैराग्य आया तो थोड़ा आपको आइडिया हुआ तो कि भाई देखो अब हमें सीरियस होना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, या हमें जो है गलत चीजों में नहीं लगना, हिसाब देना पड़ता है सबको, ऐसी चीजें आएंगी आपके अंदर भावनाएं, लेकिन वो बड़ी शॉर्ट टर्म होंगी, वो फुस हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद। तो इसको कहते हैं शमशान वैराग्य, कि वैराग्य आपके अंदर था तो, लेकिन बड़ा थोड़े देर के लिए ही था सिर्फ। तो ऐसा जो शमशान वैराग्य होता है, इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट होता नहीं एक्चुअली, और ये ऑर्डिनरी लोगों में होता है। जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं उनमें नहीं होता। जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं वो, उनको वेट नहीं करनी पड़ती कि किसी की मृत्यु होगी हम शमशान में जाएंगे वहां पे हमारे को रियलाइज होगा, नहीं, वो व्यक्ति देख रहा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख रहा है एवरीडे लाइफ में कि कैसे ये सब हो रहा है। जब यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे हैरानगी की क्या बात लगती है आपको, सबसे हैरानी होने वाली बात कौन सी है, तो आप लोगों को पता है क्या जवाब दिया युधिष्ठिर महाराज ने? क्या जवाब दिया था, कोई बता सकते हैं आप? व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल एंड अमेजिंग थिंग, क्या बोला उन्होंने?
उन्होंने कोई वर्ल्ड के 7 वंडर नहीं कह दिए? क्या भाई पिरामिड जो इजिप्ट में है वो मोस्ट वंडरफुल थिंग है, या फिर ताजमहल जो है वो मोस्ट वंडरफुल, ऐसे नहीं? क्या है मोस्ट हैरानी की, क्या क्या बात है? कोई बता रहा था, किसी ने अनम्यूट तो किया? प्रभु जी, आई वाज यस माता जी। तो उन्होंने बोला था कि सबसे हैरानी की बात यह है कि सबको पता है कि मृत्यु सबकी निश्चित है, लेकिन फिर भी ऐसे रहते हैं कि जैसे हमारी मृत्यु तो नहीं होगी। हाँ, वेरी नाइस। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक्सप्लेन किया कि सारी दुनिया देख रही है कि हर सेकंड में, हर मिनट में डेथ हो रही है, किसी ना किसी की डेथ एक्चुअली होती जा रही है मोमेंट मोमेंट पे। लेकिन फिर भी जो जिंदा है ना, वो इस तरीके से सोच के प्लान करते हैं कि हाँ भाई हम तो जिएंगे ही नहीं, और अगर कभी हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, सॉरी, और कभी उनको को लगे भी ना कि हम टेम्पररी है या हम मर जाएंगे एक दिन या ये, तो कहते हैं तो क्या, वो तो सबने ही मरना है। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि कोई भी उनको इसकी रियलाइजेशन या उसके अंदर एक्शन करने की जरूरत नहीं है। काफी थ्योरेटिकल वे में बोलते हैं हम लोग कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो एक दिन बूढ़े हो ही जाना है, एक दिन मर ही जाना है। लेकिन जब वो सामने आती है तो फिर हालत कांपने लग जाती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स कि इन सब चीजों को रियलिस्टिकली इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड देखना, समझना और इनका फायदा उठाना टाइम से, ताकि हम अच्छे से ट्रेन हो सके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। हमें शॉक में नहीं आना है किसी किसी सिचुएशन में। अगर हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, एडवांस्ड हैं, तो हम हर सिचुएशन में भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस इम्बाइब करने के लिए हमें फॉलो करनी है भगवत गीता। और भगवत गीता में अर्जुन जो है उसने सवाल कई सारे किए। अभी इस चैप्टर में, 5th चैप्टर में जो क्वेश्चन उसका शुरू में था, क्या था क्वेश्चन, कोई बता सकता है ब्रीफ में? अभी पिछले कुछ श्लोकों में किन 2 चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है? क्या अर्जुन का डाउट था 5th चैप्टर के शुरू में? कई सारे चैप्टर्स है ना, उनका शुरू में अर्जुन डाउट पूछता है, तो क्या डाउट था उनका? हाँ, सुभाष प्रभु बताएं। हाँ माता जी बताएंगे। संन्यास और वैराग्य, सन्यासी और वैरागी में। हाँ, तो सन्यासी वैरागी तो एक ही हो गया ना, कि उन्होंने सन्यास ले लिया और वैराग्य की भावना से और सब चीजें त्याग दी। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि भक्ति भावना से कर्म करना। ये 2 चीजों के बीच में वो पूछना चाह रहा है कि क्या बेटर है। क्लियर हो रहा है? तभी हम यस। हाँ, ये तरीके के वो भी सन्यासी भी पढ़े थे, फिर हमने और भी पढ़ा था डिफरेंसेस है कि नहीं, कि कैसे सन्यास लेके काम करना मीन्स सारी तपस्या करना, ऑस्टेरिटी करना, लेकिन भगवान के साथ जोड़ने में कोई इतना उसका एम्फेसिस नहीं है। लेकिन भक्ति भावना से काम करने में एम्फेसिस ही है भगवान की तरफ। तो ये 2 चीजें जो हैं इनमें से अर्जुन क्लैरिफाई करना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि मैं छोड़ वगैरह देता हूँ। नहीं, वर्क इन डिवोशन और डिवोशनल सर्विस तो एक ही बात हो गई ना। वर्क इन डिवोशन और डिवोशनल सर्विस एक जगह हो गई, और दूसरी हो गई संन्यास लेके सब कुछ त्याग देना वैराग्य की भावना से। तो ये 2 हो गई अलग अलग सिचुएशन। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? यस। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको वैराग्य की भावना तो होनी चाहिए आपके लिए, लेकिन आपके कार्य कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए भक्ति भावना में होनी चाहिए। वो आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जिस तरीके से एक कमल का पत्ता होता है, उसके अंदर पानी वानी डलता है तो वो इमीडिएटली स्लिप हो जाता है, उसके साथ स्टक नहीं होता, वो उसके साथ संपर्क में आता भी है लेकिन उसको कभी अफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि पानी से पूरा वो उसको पत्ते को इतनी बुरी तरीके से उस उन्होंने मॉइस्ट कर दिया है और अब पत्ता बेचारे के अंदर सारा पानी चला गया, अब सारा पत्ता खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, पत्ता अनटच्ड रहता है। परपट में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं कि ब्रह्मनी का क्या मतलब है यहाँ पे? कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो जो एक मटेरियल वर्ल्ड है, ये प्रधान, प्रधान का मतलब किसी को याद है? परसों डिस्कस किया था हमने, क्या है ये प्रधान? कौन बताएगा? मैंने बोला था ना प्रधान आएगा। आई थिंक गुड़ियामी ने बोला भी था 10th चैप्टर के परपट में, 10th श्लोक आगे। किसी को मतलब नहीं याद प्रधान का? सब भूल गए? कुछ ओरिजिन ऑफ कुछ था ना, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ, सही है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ओरिजिन ऑफ प्रभु जी, मटेरियल या कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ओरिजिन ऑफ मटेरियल समथिंग था। हाँ 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 हाँ, ओके, अंकिता माता जी बताएंगे। प्रभु जी, जब एनिलेशन होता है या जब नया सृष्टि क्रिएट होता है तो प्रधान से फिर सारे बाकी सारे तत्व क्रिएट होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो जो प्रधान है ये प्राइमोर्डियल प्रिमेबल फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त फॉर्म होती है सारे एलिमेंट्स की। जो 24 एलिमेंट हमने पढ़े थे ना परसों, किसी को याद आ रहा है? 24 एलिमेंट पढ़े थे एक बार बचपन में, याद है जब सब छोटे छोटे थे हम लोग? समय के प्रभाव से अब बड़ा टाइम हो गया ना, अब भूल गया हूं। किसी को याद है 24 एलिमेंट? कौन है जो 24 के 24 बता सकता है? किसी को याद नहीं प्रभु बचपन की जी, कहानी? ट्राई कर सकते हैं। हाँ माता जी बताएंगे। प्रभु जी, 5 जिनसे बॉडी बनते हैं, 5 एलिमेंट्स वो, और हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, वो अर्थ, वाटर, एयर, ईथर एंड फायर, वेरी गुड। और 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर 5 कर्मेंद्रियां रहती हैं, एंड 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनसे परसीव करते हैं सेंसेस, एंड 3 एलिमेंट्स प्रभु जी सटल बॉडी के थे, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस। ओके, आई थिंक प्रभु जी 23 होते हैं ऐसे, एंड 24th वन वाज प्रधान। वेरी गुड। 3 टाइम्स हरि बोल पर माता जी, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो ये सारे के सारे मिला के बन गए प्रधान। तो ये हो क्या रहा है, ये सम टोटल जो है सारे एलिमेंट्स का, इसको प्रधान कर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या दिया, वेदिक हिंस सर्वम ही एतद ब्रह्म। मुकुंड उपनिषद का यहाँ पे कोट किया गया है, और मुंडाका उपनिषद से भी कोट किया गया, और ब्रह्म भगवत गीता से भी बोला गया है। क्या बोला गया है यहाँ पे? मम योनिर महद ब्रह्मा। तो इन सब में क्या है, इंडिकेट दैट एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन, कि हर कुछ एक्चुअली तो ब्रह्मन की ही मैनिफेस्टेशन। एंड ऑल्दो द इफेक्ट्स आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द कॉज, ठीक है। तो ये ब्रह्मन क्या चीज है, कोई बता सकता है क्या है ये ब्रह्मन? यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं शेड कर देता हूँ ताकि सबको पता रहे हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं। ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है कि एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन, and although the effects are differently manifested, they are non different from the cause. तो ये क्या हुआ, मतलब क्या मतलब है इसका? देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं पहले, फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जो ईसोपनिषद है बुक, जैसे भगवत गीता है, उसके अलावा भी कई स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे आपको पता है वेद हैं, है कि नहीं? और वेदों के अलग अलग सेक्शंस हैं, और उसमें एक आता है उपनिषद का सेक्शन। उपनिषदों में एक बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है, उसका नाम है ईसोपनिषद। और ईसोपनिषद के शुरू में ही ईशावास्यम प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? आप लोग रिपीट कर दीजिए मेरे सामने। ईशावास्यम, कौन सा प्रिंसिपल? ईशावास्यम। हाँ,
ईशावास्यम प्रिंसिपल क्या होता है, कोई बता सकता है? क्या है ईशावास्यम का मतलब? ईश्वर का बताया हुआ शायद, मे बी। ईशावास्यम, ईशावास्यम प्रिंसिपल का मतलब यह है कि सारी सृष्टि, सब जगह जो भी है, जो भी हमें दिख रहा है, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी किसकी है? वो भगवान की प्रॉपर्टी है। और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। और जो जीव है, लिविंग एंटिटीज है, वो भगवान के बताए हुए रिकमेंडेड पथ पे जब चलते हैं, तो वो लोग, जैसे हम लिविंग एंटिटीज हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना शरीर का निर्वाह करने के लिए सृष्टि में जो चीजें हैं, उनमें से भगवान के सेवा में लगाने के लिए हम यूज कर सकते हैं वो रिसोर्सेज को। लेकिन हमें उतनी यूज करनी चाहिए जितना हमारा कोटा है। कभी क्या होता है कि आप देखो कहीं पे अगर कोई ग्रेन्स का एक बोरी गिर गया गया गेहूं मान लो गिर गए, और बोरी टूट गई, फट गई, और उसके अंदर से गेहूं बाहर आ गए, तो आप देखोगे कभी कोई जानवर आएगा, चिड़िया आएगी, वो थोड़ा सा खा लेगी, कौवा आएगा, वो थोड़ा सा खा लेगा, ठीक है, कोई और जानवर आएगा, वो थोड़ा सा चबा लेगा वहां पे आके। जिसको जितना चाहिए अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए, वो उतना लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इंसान जो आएगा ना, वो क्या करेगा, वो देखा अच्छा बोरी गिरी हुई है, वो उतना तो लेगा ही, साथ में दूसरा भी पैक कर लेगा अपने सब जगह के लिए। तो होर्डिंग करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है इंसानों में। तो हम क्या करते हैं, अपने कोटा जितना है ना हमारा, उससे कई गुने ज्यादा पे अपना हाथ मार लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम सृष्टि का इम्बैलेंस जो है ना, उसको बढ़ाते रहते हैं। बाकी लिविंग एंटिटीज के लिविंग इकोसिस्टम को बुरी तरीके से हम अफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो क्या होता है, नॉनवेज वो लेते हैं, हम जानवरों को इतना टॉर्चर करते हैं, उनको इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। कई हो सकता है नहीं लेते हो नॉनवेज, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कुछ लोग दूध वगैरह लेते हैं, और दूध के लिए भी कई बार बड़ा टॉर्चर करना पड़ता है जानवर। और कई लोग हैं जो वो भी नहीं करते, वो नॉनवेज भी नहीं लेते, दूध भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में कई चीजें हम ऐसे करते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनके अंदर लेदर है, डिफरेंट चीजें हैं, कभी दवाइयां में, वहां पे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अवॉइड तो करना चाहिए, लेकिन जब तक होल ह्यूमन सोसाइटी चेंज नहीं होती, तब तक हम बाकियों के इकोसिस्टम को अफेक्ट करते रहेंगे। और अगर हम कुछ भी ना करें तो भी हमारी लाइफ इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल बन चुकी है, हम जगह प्लास्टिक यूज करते हैं, इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, और प्लास्टिक जाती है ओशंस में, और इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ जाता है पूरी पूरे ओशन की लाइफ को। और धरती में जब हम डालते हैं तो गाय खाती है उसको, गाय के भी अंदर इतनी प्रॉब्लम हो जाती है प्लास्टिक की वजह से। तो ये सब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती जा रही है, क्योंकि हम ईशावास्यम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ईशावास्यम प्रिंसिपल मीन्स हर कुछ भगवान के लिए बना है। तो पहले के टाइम में बड़ा कॉशियस और केयरफुल होते थे लोग, कुछ भी गलत चीज करने से पहले, कोई भी ऐसी चीज और ऑब्टेन करने से पहले, या ऐसी चीजों में पढ़ने से पहले, वो सृष्टि और नेचर को बहुत रिस्पेक्टफुली रखते थे। पेड़ को देखो, हम काटने का प्रधान वो नहीं है कि भाई पेड़ काटते रहो। और आजकल तो देखो, पेपर, अलग अलग तरह की चीजें बनाने के लिए पेड़ काटते ही रहते हैं, काटते ही रहते हैं। टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, ये अखबारों के लिए पेपर, जो कि एकदम अखबार जरा सी पढ़ के फिर कूड़े में ही जाती है। वेरी वेरी सॉरी। तो ये ईशावास्यम प्रिंसिपल जो है, उसको अगर हम अप्लाई करेंगे, तो इन सब चीजों को हम कट करके क्या करेंगे, हम सोचेंगे क्या ऐसा हमको करना है जिससे हम भगवान की सेवा में लगे। सारा का सारा भगवान की प्रॉपर्टी है, उसको खराब नहीं करना, हम उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। तो ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको सबको फॉलो करनी चाहिए भगवत गीता और ईशोपनिषद। तो ये सब के लिए आपको भगवत गीता में मिलेगी सॉल्यूशन। कोई ये नहीं है कि भगवत गीता के सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद किया, नहीं, शरीर छोड़ने के बाद से
तो है ही है सोल्यूशन, लेकिन अभी भी है, पहले भी अगर अपनी लाइफ को अच्छे से रखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ईशावास्यम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे ईशोपनिषद के, तो भगवान की सेवा में रहेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट जो ओरिजिनली बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सारा कुछ भगवान का है, कृष्णा का है। उसको सुप्रीम ब्रह्मन मीन्स कृष्णा। जो ब्रह्मन है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमने भगवान की देखा था, अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। तो सुपीरियर एनर्जी भगवान की कौन सी है, कौन बताएगा? अच्छा पहले इंफीरियर एनर्जी ले लेते हैं। इंफीरियर एनर्जी कौन बताएगा? इंफीरियर एनर्जी कौन सी है भगवान की? योग माया। इंफीरियर एनर्जी योग माया। ओके, और कोई? प्रभु जी जो मटेरियल वर्ल्ड की एनर्जी है वो। हाँ, तो इंफीरियर एनर्जी में हमने जो अभी पढ़े थे ना 23-24 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे इंफीरियर एनर्जी में आ जाते हैं भगवान की। ठीक है ना, जो भी मटेरियल एलिमेंट्स पढ़े। तो फिर सुपीरियर एनर्जी क्या है? राधा रानी। आत्मा आई थिंक। सुपीरियर किसने बोला? आत्मा? भाव्या ने? मैंने। यस भव्य। यस, जीव भूता महाबाहो। Because this is भगवान Daru medicine, remember? So तो is today your wrath? जो जीव हैं, जो लिविंग एंटिटीज हैं, वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी। तो फिर ये योग माया और महामाया क्या है? तो महामाया जो है वो कंट्रोल करके रखती है इंफीरियर एनर्जी को, और ऐसे जीवाओं को जो इंफीरियर एनर्जी के कांटेक्ट में, संपर्क में, प्रभाव में है। और योग माया क्या करती है? वो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी मींस जो प्योर लिविंग एंटिटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके साथ होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, देखा, मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो योग माया जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं जो लिविंग एंटिटीज प्योर होते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं, पूरी तरह से भगवान का शरण लिया हुआ, तो वो होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये भगवान की एनर्जीज हैं। तो वही यहाँ पे बताया है कि एवरीथिंग जो है मटेरियल वर्ल्ड में वो मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मन की। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्मन हूं, मीन्स मैं भगवान का अंश हूं। ठीक है ना। और जिसको ये ज्ञान अच्छे से पूरी तरीके से पता होता है कि भगवान ही है जो सब चीजों के ओनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो वो भगवान को, सारी चीजें भगवान की सेवा में यूज करेगा। वो लेगा नहीं भगवान से अलग किसी और की सेवा करने की। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कभी भी पाप नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति वो पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। हमारा जो शरीर है वो भगवान की दी हुई एक गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है। तो इसको इस्तेमाल किसके लिए करना है? कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमें इस तरीके से करनी है कैसे भगवान की सेवा में हम लग सके। तो कभी भी ऐसा व्यक्ति जो है वो पाप में नहीं पड़ेगा, वो अनटच्ड रहेगा पाप से, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। तो जैसे एक लीफ यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वो पानी से अनटच्ड रहता है, लोटस लीफ जो पत्ता है, उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो इस कॉन्शियसनेस में काम करता है वो कभी भी पाप से टच नहीं हो सकता। और जिस तरीके से पानी में रह के भी वो पत्ता अगर आप निकालो, जरा सा हटा करो उसको, सारा पानी उसमें झड़ जाता है, उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो है वो रह तो रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन इस मटेरियल के पूरे भरे हुए पाप और कर्म की स्थिति में वो अटैच नहीं होता, और वो कार्मिक बॉन्डेज से बंधता नहीं है, वो अकर्मा की स्टेज पे रहता है। समझ में आ रहा है सबको? अभी तक क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? अतुल, मेरा ना नेट चला गया था, तो प्रधान का जो आप बता रहे थे वो मेरा मिस हो गया। प्रधान का वो तो बहुत पहले हो गया ना। प्रधान हाँ, का तब मेरा नेट चला गया था। ओके, तो प्रधान का ये मतलब है कि जो बाकी 23 एलिमेंट्स थे वो जब मैनिफेस्ट नहीं हुए थे, जब वो अपनी अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन में थे, प्रिमीवियल
प्राइमोर्डियल फॉर्म में थे, जो कि अव्यक्त स्टेज होती है, अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुए। तो ये क्रिएशन में हम देखेंगे, जब हम सृष्टि की रचना को बारे में पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे ये अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं और ये पहले प्रधान के फॉर्म में होते हैं और फिर इससे मैनिफेस्ट होने शुरू होते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो हैं इनको इंग्रेडिएंट्स को लेके फिर सारे का सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये सब जो है पहले जिस फॉर्म में होते हैं उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पे कृष्णा 3.30 श्लोक प्रभुपाद 3.30 श्लोक को कोट कर रहे हैं, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याद्यते अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व युगता ज्वरा। के सारे आपके जो कर्म हैं वो भगवान की सेवा में करने हमने, ठीक है ना? रिजाइन करो सारे वर्क भगवान को, कि भगवान की सेवा में लग के करो सारे कर्म। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो भक्ति भावना कृष्णा कॉन्शियस में ही एक्ट करता है। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या है। The conclusion is that person without Krishna consciousness acts according to the concept of material body. हाँ, और जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति नहीं है वो भक्ति भावना से नहीं चलाता अपनी लाइफ को। और वो कैसे चलाता है? वो सेंसेस के प्रभाव के हिसाब से चलाता है, जो उसके सेंसेस को चाहिए उस हिसाब से। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस है वो ज्ञान के माध्यम से चलाता है और कर्म करता है, और ऐसे कर्म करता है जो भगवान की सेवा में उसको लगा सके। ऑल राइट, तो क्लियर हुआ है सबको? ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे वही सिंपल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं? चले आगे। यस। ओके। कायेन मनसा बुद्धया कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धया संगम त्यक्त्वा सुधाय। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ, पढ़ो पढ़ेगा। Translation: The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence, and even with the senses only for the purpose of purification. Purport: when one acts in Krishna consciousness for the satisfaction of the senses of Krishna, any action, whether of the body, mind, intelligence, or even the senses, is purified of material contamination. There are no material reactions resulting from the activities of a Krishna conscious person. Therefore, purified activities, which are generally called sadachara, can be easily performed by acting in Krishna consciousness. Sri Rup Goswami, in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187, describes this as follows. मैं रीड कर सकता हूँ ये। इहायास्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। ट्रांसलेशन पढ़ोगे आप वहाँ पे? Yes. A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. He has no false ego, for he does not believe that he is this material body, or that he possesses the body. He knows that he is not the body, and that this body does not belong to him. He himself belongs to Krishna, and the body too belongs to Krishna. When he applies everything produced of the body, mind, intelligence,
words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possession, to Krishna's service. He is at once de- devo- devo- Dovetail. dovetailed with Krishna. He is one with Krishna and is devoid of the false ego that leads one to believe that he is the body, etc. This is the perfect stage of Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, तो ये परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कौन सी है? जीवन मुक्ता. जीवन मुक्ता स उच्यते. तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से और अपनी जो बोल रहा है मुंह से, स्पीच, वर्ड्स, वो उन सब को, ये सारी चीजों से जो हम कार्य कर रहे हैं, मन से, बुद्धि से, शरीर से और शब्दों से, ये सब के सब भगवान की सेवा में अगर लगा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन मुक्ता है. वो जीवित होके भी वो मुक्त है. जनरली लोग सोचते हैं लिबरेशन मीन्स आपको मरना ही पड़ेगा पहले, तभी आप लिबरेट होते हो. तो ऐसे लोगों को ज्यादा ज्ञान है नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जीवन मुक्त प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति होता है उसकी कॉन्शियसनेस अलग लेवल पे होती है. हमने पढ़ा था ना अभी, 4 तरह की कॉन्शियसनेस होती है, और ऑर्डिनरी व्यक्ति 3 कॉन्शियसनेस की स्टेज में होते हैं. कौन कौन सी कॉन्शियसनेस की स्टेजेस पढ़ी थी हमने 2 दिन पहले बचपन में? कोई याद है किसी को? 3 स्टेजेस पढ़ी थी ना? जागरण, स्वप्न, वेरी गुड. जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति. सुषुप्ति. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो जागरण क्या है? मतलब जब बुला के घर जगराता कराएं, वो है जागरण. क्या वेकफुलनेस. है? वेकफुलनेस. हाँ, परफेक्ट. जागरण मीन्स वेकफुलनेस. जो दिन के टाइम में ज्यादातर लोग जागे होते हैं. और दूसरा क्या था? स्वप्न. स्वप्न क्या है? Mind is very active and in my sleep they can walk and talk like. हाँ, वेरी गुड. तो जो आपका शरीर है वो तो सो रहा है, लेकिन मन अभी सो नहीं रहा, वो एक्टिव है, वो उठा हुआ है. तो उसमें हमें ड्रीम्स वगैरह आती हैं. और तीसरा कौन सा है? सुषुप्ति. वो उसमें क्या हो रहा है? Sushupti, restful sleep, very peacefully you're sleeping. हाँ, उसमें मन और शरीर दोनों शांत हैं. तो जब मन और शरीर दोनों शांत हैं, तो फिर मतलब ये इस स्टेज से बाहर कैसे आते हैं? उठता कैसे है व्यक्ति? मन भी सो रहा है, बॉडी भी सो रही है, तो फिर कैसे जागता कैसे? कोई बता सकता है कैसे जागता है? कैसे जागते हैं हम लोग? नोट्स में क्लास पॉइंट था, उसमें था परमात्मा. आई एम नॉट श्योर प्रभु जी, आई थिंक वो पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ था, बट आई थिंक दैट. इसलिए हम आज कर रहे हैं वो पॉइंट डिस्कस. ओके. और क्या कॉन्शियस होता है, प्योर होता है, सेल्फ रियलाइज होता है. नहीं, यहाँ क्वेश्चन है कि जब हम लोग सब सोते हैं, जब अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, जागरण, फिर स्वप्न, सुषुप्ति. मान लो आप सुषुप्ति की स्टेज पे हो, पूरा सो रहे हो, अब उठता कैसे शरीर? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है ना हम लोग का. आई थिंक 8 आवर्स की नींद. हाँ, तो कौन चलाता है बायोलॉजिकल को? कैसे हमारी एकदम आँख खुल जाती है? माइंड. माइंड तो खुद सो रहा है सुषुप्ति हमारे स्टेज. हृदय में जो परमात्मा है. हाँ, दैट इज द आंसर, परफेक्ट आंसर. जो परमात्मा है एक्चुअली वो हमें उठाते हैं. कभी आप देखोगे कि आपने कुछ करना है या कुछ एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे आपकी नींद खुल जाती है. कभी किसी ने देखा है, महसूस हुआ है कभी कि बिल्कुल जब होता है ना उसी. यस यस. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि परमात्मा, ही इज गाइडिंग, ही इज हेल्पिंग, ही वेक्स अस अप. तो अगर हम परमात्मा में उठाएंगे ना, तो हम उठ नहीं सकते, हमारी इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है. तो इसलिए ये जो कॉन्शियसनेस 3 लेवल पे सब लोगों की चल रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ कोर्स सोल का, मगर सोल को जो हेल्प करते हैं वो है सुपर सोल, परमात्मा. और अब चौथी लेवल की कॉन्शियसनेस एक हमने पढ़ी थी कि ये 3 तो है ही है. फिर चौथी कौन सी थी?
समाधि, समाधि, हाँ समाधि, उसका एक और नाम क्या था? तुरिया। 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 यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये जो स्टेज थी, ये स्टेज होती है कि आप जीवित तो हैं, जिंदा तो हैं आप, लेकिन आप टोटली प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस में एक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेज जो है इसको कहते हैं जीवन मुक्ता। जीवन लिविंग हो लेकिन अभी आप लिबरेटेड हो, तो आप एक्सपीरियंस करते हो स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को, स्पिरिचुअल रेल्म को, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को। ऐसे लेवल पे आप एक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ नहीं कि ये मन धड़न कहानियां ही रह जाती हैं, या एक किसी ने बैठ के बना दिया कुछ और दे दी ये किताबें, अब इसको करते रहो आप फॉलो, ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली रियलाइजेबल फैक्ट्स हो जाते हैं कि आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो ग्रेट सेज, ऋषि मुनि, ये सब जो शास्त्र लिखते हैं, यही स्टेज में आके लिखते हैं शास्त्र, तभी उनकी वैल्यू है। अदरवाइज उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है जो ऑर्डिनरी स्टेज में लिखी जाए, जब हम इस शरीर के चंगुल में और शरीर के हिसाब से सब सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति को आने के लिए प्रोसेस क्या है, फॉलो करना, भगवान की सेवा में लग के, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या लिखा है, persons acting in Krishna consciousness with body, mind, intelligence, words is liberated person even within the material world, although he may be engaged in so many so-called material activities। अब वो जीवन मुक्ता व्यक्ति भी कई बार सेम चीजें करेगा। आप देखोगे, अरे यार ये भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ये भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, ये भी कुकिंग कर रहे हैं, ये हम भी कुकिंग कर रहे हैं, तो ये तो अपने जैसा ही हुआ ना, फिर ये कहाँ से लिबरेटेड। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है वो भी प्यूरिफाइड नहीं हुई, स्पिरिचुअल नहीं हुई। इसलिए ऐसे बंदों को समझ में नहीं आता कि हालांकि वो देखने में वही काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली उनकी कॉन्शियसनेस लेवल वो फिक्स्ड है भगवान पे, और वो उस तरीके से काम कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में डायरेक्टली लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनके अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं होती। वो इस भ्रम में नहीं होते कि हाँ भाई हम ये शरीर है और जो भी शरीर से जुड़ी हुई चीजें वो हमारी है। उसको पूरी तरह से पता लग जाता है कि ये शरीर जो है तो भगवान की सेवा में लगने के, तो उनकी इंटेलिजेंस जो है वो प्यूरिफाइड हो चुकी है, मटीरियली कंटामिनेटेड नहीं है। हमारी जो है बड़ी मटीरियली कंडीशनड और कंटामिनेटेड है ज्यादातर व्यक्तियों, तो ये मटीरियल रिएक्शन होते हैं। और जो प्यूरिफाइड हो जाते हैं वो प्यूरिफाइड एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पे पीछे लिखा होता है ना शुरू में, सदाचार। ये सदाचार मीन्स उनका आचार, उनका आचरण, उनकी एक्टिविटीज जो होती है वो सदा प्यूरिफाइड होती है, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इजीली प्रैक्टिस कर पाते। ऑल राइट, तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। क्लियर हो रहा है सबको आज का? तो हमने आज 10th और 11th श्लोक का किया, 5th चैप्टर का। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम अपना नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, वो है श्लोक का रिसाइटेशन। ऑल राइट, तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। कौन कौन है जिन्होंने श्लोक याद कर लिया? कौन सा श्लोक हमने किया था, किसी को याद है?